अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों को आइडिया है कि नई फिज़िकल क्लासेस ख़त्म हो गई हैं, तो हम इंशाल्लाह अब आगे के लेक्चर जो है वो ऑनलाइन कंटिन्यू रखेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग अमाइनो एसिड्स की हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स पढ़े थे और उसके स्ट्रक्चर पढ़े थे। तो आगे हम अमाइनो एसिड से कंटिन्यू करते हैं। नाउ वी विल कंटिन्यू विथ नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। दिस इज अनदर क्लास ऑफ अमाइनो एसिड्स that is basically different from the previous classes we have studied. Why this class is different? In this class, we study the compounds that are set a similar structure to the basic amino acid that we have studied in the previous classes. As we know that to have amino acid in a similar basic structure, compound must have a carboxylic group, amino group, and a carbon chain, and the hydrogen group. These are the four sides of carbon. So this is the basic structure of amino acid. So any compound that does exist with these basic structures, with these basic functional groups, should be categorized in amino acid. So these are the compounds that also have these basic structures. But the difference is they do not occur in the form of protein. Means they do not form peptide bonds with their similar molecules. So there is no peptide chain of these non-standard amino acids. So there is no peptide chain. That means there is no proteins that occur by the combination of these non-standard amino acids. Some examples we have here. First one is beta alanine. Beta alanine is found as a coenzyme A, and it only exists in the form of amino acid. And what are coenzymes? Coenzymes are the molecules that help different enzymes in any chemical reaction, that help in the catalysis of different chemical reactions, if I say it correctly. तो जहाँ पर भी हमारे पास कोएंजाइम ए की नीड होती है, कोएंजाइम ए जो है एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है। इस प्रोटीन मॉलिक्यूल का एक छोटा सा पार्ट हमारे पास बीटा एलेनिन होता है, जो कि एज अ अमाइनो एसिड एग्जिस्ट करता है, और बीटा एलेनिन कभी भी जो है एज अ प्रोटीन एग्जिस्ट नहीं करता। So the next example we have is taurine. Taurine is found in bile acids. Bile acids, as we all know, is a part of our digestive system, and it helps in the digestion of different types of foods, especially lipids. So it is a part of a bile acid, and also it also exists in the form of just amino acid. Next example is ornithine and citrulline. Ornithine and citrulline both are a part of, are act as an intermediate in different metabolic reactions, and most common example is urea cycle. When we will study inshallah in next semester, we will study in urea cycle, then we will understand the exact part of these two amino acids. Next is thyroxine and triiodothyronine. They are very common as thyroid hormones, and हम सब ने इसका पहले नाम सुना होगा। ऑब्वियसली थायरोक्सिन जो है हमारे पास एक टैबलेट की फॉर्म में भी अवेलेबल होती है मार्केट में। जिन पेशेंट्स को पास जो है डेफिशिएंसी होती है थायराइड हार्मोन्स की, या उनके अंदर जो है थायराइडलेक्टेमी हो चुकी होती है, मतलब उनका थायराइड ग्लैंड रिमूव किया हुआ होता है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए जो मेडिसिन होती है वो थायरोक्सिन होती है, वो बेसिकली T4 होती है। और ये भी एग्जाम्पल है अमाइनो एसिड की, बिकॉज अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे थायरोक्सिन का, तो उस स्ट्रक्चर में वो सारे ग्रुप्स होंगे जो एक अमाइनो एसिड में लाजमी होने चाहिए। मतलब एक साइड पे हमारे पास अमाइनो ग्रुप होगा, एक साइड पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा, और दूसरी साइड पे हमारे पास कार्बन की चेन होगी। एंड अगेन thyroxine also does not exist in the form of protein, and it always exists in the form of amino acid. Next is alpha amino butyric acid, GABA. ये एक बहुत ही अहम मॉलिक्यूल है, और it is one of the most potent inhibitory neurotransmitter of our CNS. Okay. न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे CNS में बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्साइटेटरी और एक होता है इनहिबिटरी। तो अल्फा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड
इसको हम जो है गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, जिसको हम गैबा भी कहते हैं, ये जो है एग्जाम्पल है हमारे पास इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की। अगर इसकी कंसंट्रेशन हमारे सीएनएस में ज़्यादा हो जाती है या ये अपने रिसेप्टर्स पे जब बाइंड करता है तो ये सीएनएस पे एक डिप्रेसिंग और इनहिबिटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। और अगर इसकी कंसंट्रेशन हमारे सीएनएस में कम हो जाएगी तो हमारे सीएनएस में जो है एक्साइटेटरी इफेक्ट बढ़ जाएगा। जो एक्साइटेटरी इफेक्ट होता है हम उसको दूसरे वर्ड्स में एंजाइटी कहते हैं। मतलब अगर हमारे सीएनएस में अल्फा माइनो ब्यूटारिक एसिड की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और सफिशिएंट कंसंट्रेशन नहीं होगी तो हमारा ब्रेन, हमारा सीएनएस जो है वो एंजाइटी की तरफ चला जाएगा और हमारे पास जो है एंजाइटी के सिम्टम हमें फेस करेंगे। तो ये भी एक एग्जांपल है हमारे पास अमाइनो एसिड की, अल्फा अमाइनो ब्यूटारिक, गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, और ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि ग्लूटामिक एसिड से बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास बीटा अमाइनो आइसोब्यूटारिक एसिड। What is it? These are the end product of pyrimidine metabolism. पायरिमिडीन हमारे पास न्यूक्लिक एसिड बेसिस होती हैं, एक प्यूरीन बेसिस होती हैं और पायरिमिडीन बेसिस होती हैं। जब उनकी मेटाबॉलिज्म होती है तो एज अ एंड प्रोडक्ट हमारे पास एक अमाइनो एसिड बनता है, उसको हम कहते हैं बीटा अमाइनो आइसोब्यूटारिक एसिड। और ये अमाइनो एसिड भी हमारे पास प्रोटीन की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए हम इसको नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड में क्लासीफाई करते हैं। नेक्स्ट इज अमाइनो लिविनिक एसिड। ये भी एक अमाइनो लिविनिक एसिड is an intermediate in heme synthesis. Heme is a part of blood, or you can say is a part of RBC. And during the synthesis of heme, amino livinonic acid is an intermediate. Act as an intermediate. नेक्स्ट है हमारे पास एस एडिनोसाइल मैथ्यूनिन। एक हमारी बॉडी में पाथवे होता है मैथ्यूनिन पाथवे, उस पाथवे के अंदर जो है हमारे पास एस एडिनोसाइल मैथ्यूनिन जो है वो एक मिथाइल डोनर की फॉर्म में जो है हमें मिलता है और इसका प्रिकर्सर होता है हमारे पास एल मैथ्यूनिन। एस एडिनोसाइल मैथ्यूनिन का स्ट्रक्चर भी हमारे पास अमाइनो एसिड के बेसिक स्ट्रक्चर से सिमिलर होता है, तो इसलिए हम इसको नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड में ही काउंट करते हैं। Now next is another very important molecule, that is 3,4-dihydroxyphenylalanine, also known as DOPA. DOPA is a very significant molecule. Why I say this? Because DOPA is responsible for the synthesis of different types of neurotransmitters in our brain. इसकी हम एग्जांपल अगर दें, ब्रेन के अंदर एक पाथवे होता है, उस पाथवे के थ्रू जो है एक अमाइनो एसिड है हमारे पास टायरोसिन। टायरोसिन जो है वो कन्वर्ट होता है डोपा के अंदर, और फिर डोपा बाद में कन्वर्ट होता है हमारे पास डोपामीन में और नॉरएपिनेफ्रिन में। डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन हमारे पास एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर हैं सीएनएस के, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जिस तरह हमने पढ़ा था गैबा, गैबा हमारे पास इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर था, इसी तरह डोपा हमारे पास डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन जो हमारे पास एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। तो उनका जो हमारे पास प्रिकर्सर होता है वो बेसिकली डोपा होता है, दैट इज डाईहाइड्रोक्सीफिनाइलएलानिन। इसके अलावा इट इज आल्सो अ प्रिकर्सर ऑफ मेलानिन पिगमेंट। मेलानिन एक पिगमेंट है जिसकी कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी बॉडी में उतना ही ज़्यादा हमारी बॉडी में कलर डार्क होता रहता है, हमारी स्किन का कलर उतना ज़्यादा डार्क होता रहता है। तो जिन लोगों में मेलानिन की कंसंट्रेशन, मेलानिन पिगमेंट की कंसंट्रेशन कम होती है, उनका जो स्किन कलर होता है वो ब्राइट होता है, और जिनके अंदर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वो उनके स्किन का कलर डार्क होता है। और ये पिगमेंट भी जो है डोपा से ही सिंथेसाइज होता है। अच्छा, नेक्स्ट टाइप है हमारे पास अमाइनो एसिड्स की, डी अमाइनो एसिड्स। ये भी हम कह सकते हैं एक तरह से कि ये भी जो है नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं, बट इनमें डिफरेंस ये है कि ये हमारी बॉडी में एग्जिस्ट नहीं करते। दे एग्जिस्ट इन डिफरेंट एनिमल्स और इन डिफरेंट बैक्टीरियाज स्पेशली। So these are non-standard amino acids, or they normally isolate from animals and plants. सॉरी, जो जो हमारे पास नॉर्मली हमारे पास ह्यूमंस के अंदर और
प्लांट्स के अंदर जो अमाइनो एसिड एग्जिस्ट करते हैं वो होते हैं एल अमाइनो एसिड्स। जैसे हमारी बॉडी में जितने भी अमाइनो एसिड होते हैं वो एल फॉर्म में होते हैं। डी और एल का डिफरेंस आप लोग पढ़ चुके हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। हम आगे इसी इसमें अमाइनो एसिड्स की भी आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, तब भी हम इसका डिफरेंस देख लेंगे। तो जो हमारी बॉडी में और प्लांट्स में जो अमाइनो एसिड्स एग्जिस्ट करते हैं वो एल फॉर्म में होते हैं, एल अमाइनो एसिड होते हैं। बट डी अमाइनो एसिड जो है वो स्पेसिफिकली जो है वो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, और इसके अलावा कुछ ब्रेन टिश्यूज में पाए जाते हैं डिफरेंट एनिमल्स के। लेकिन ह्यूमंस के अंदर और प्लांट्स के अंदर डी अमाइनो एसिड एग्जिस्ट नहीं करते। इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास डी ग्लूटामिक एसिड एंड डी एलेनिन आर constituent of bacterial cell wall, and D amino acids are found in certain antibiotics as well. For example, gramicidin S, actinomycin D. These are amino acids that are found in antibiotics, and we know from where we get the antibiotics, especially from different fungi. So fungi is the source of antibiotics, and D amino acids are exist in these antibiotics as well. Animal tissues contain L amino acids which are deaminated by L amino acid oxidase, but there is also present D amino acid oxidase, the function of which was not known. Now, D amino acid like D aspartate and D serine has been found in brain tissue. This explains the existence of D amino acid oxidase. इसमें क्या बात बताई गई है? इसमें ये बात बताई गई है कि नॉर्मली जो एनिमल टिश्यूज में और ह्यूमन टिश्यूज में एल अमाइनो एसिड्स एग्जिस्ट होता है, उसकी मेटाबॉलिज्म होती है, उसकी डी अमाइनेशन होती है। डी अमाइनेशन का मतलब होता है कि इनएक्टिवेशन ऑफ डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। द प्रोसेस ऑफ इनएक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड इज डी अमाइनेशन। ये किसके जरिए होता है? इट हैपेंस बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम एल अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज, but there is also present D amino acid oxidase. अब क्योंकि डी अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में तो मौजूद नहीं है, लेकिन एक एंजाइम होता है डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज, तो इसकी जो प्रेजेंस है उसका मकसद अभी तक क्लियर नहीं हो सका। और उससे हम ये गैस कर सकते हैं कि डिफरेंट एनिमल्स के अंदर, उनके ब्रेन टिश्यूज के अंदर हमारे पास डी अमाइनो एसिड्स होते हैं, जिसकी एग्जांपल है हमारे पास डी एस्पार्टेट एंड डी सीरीन। ये वो अमाइनो डी फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं जो डिफरेंट एनिमल्स के ब्रेन टिश्यू में होते हैं। तो उनकी मेटाबॉलिज्म के लिए डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम मौजूद होता है। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शंस ऑफ कॉमन अमाइनो एसिड्स। तो इसमें कुछ कॉमन अमाइनो एसिड्स हैं जिन पे हम फोकस करेंगे, उनका फंक्शंस को देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम बीइंग द मोनोमेरिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन एंड पेप्टाइड्स, अमाइनो एसिड्स serve variety of functions. Some amino acids are converted to carbohydrate and are called as glucogenic amino acids. कुछ अमाइनो एसिड्स हमारे ऐसे होते हैं जो आगे आके by the process of metabolism, different process of metabolism, they convert into carbohydrates, and these processes are known as gluconeogenesis. And these type of specific amino acid are called as glucogenic amino acid. ठीक है? The process जो मैंने बताया, मैं दोबारा बता देता हूँ. The process of synthesis of carbohydrate from different amino acid is known as gluconeogenesis, and these amino acids that are converted to carbohydrate are known as glucogenic amino acids. Specific amino acids give rise to specialized products. For example, tyrosine form hormones such as thyroid hormones, T3, T4, epinephrine and norepinephrine, and a pigment called melanin. टायरोसिन के हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसा कि मैंने अभी पीछे आप लोगों को एग्जाम्पल दी थी। टायरोसिन के जरिए जो है हमारे पास डिफरेंट हार्मोन्स बनते हैं, डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स बनते हैं और एक पिगमेंट भी बनते हैं। टायरोसिन इज द इनिशियल प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ डोपा, देन डोपामीन, then norepinephrine, then also epinephrine and other thyroid hormones T3, T4 and also pigment melanin. Similarly, we have another amino acid, tryptophan, that is involved in the synthesis of a vitamin
known as niacin. And tryptophan के बारे में एक और बात बता दूं, tryptophan also involved in the synthesis of neurotransmitter that is serotonin, also known as 5-hydroxytryptophan. एक और हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसको हम कहते हैं 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टोफैन, और उसका दूसरा नाम है सेरोटोनिन। ये भी हमारे पास एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। इसका भी जो प्रिकर्सर है वो हमारे पास वो है ट्रिप्टोफैन। ये जो सारी बातें मैं आपको स्लाइड्स के अलावा बता रहा हूँ, ये आप साथ साथ जो है नोट कर रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। उनके ये सारी बातें भी जो है इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे कोर्स के लिए और हमें समझने के लिए। नेक्स्ट वी हैव ग्लाइसिन, arginine and methionine. These three amino acids are a part of a metabolic pathway that involves the synthesis of creatinine. क्रिएटिनिन जो है हमारी बॉडी में एक बाय प्रोडक्ट होता है, और इस क्रिएटिनिन की कंसंट्रेशन की वजह से जो है हम अपनी बॉडी की जो किडनी का फंक्शन है हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं। क्रिएटिनिन की एक्सक्रीशन के जरिए भी और क्रेटिनिन की कंसंट्रेशन इन ब्लड के जरिए भी जो है हम किडनी के फंक्शन को डायग्नोस कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट्स के अंदर क्रेटिनिन की कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा आती है तो इसका मतलब होता है कि उस पेशेंट की किडनी कॉम्प्रोमाइज़ है और उसको कोई ना कोई रेनल डिसऑर्डर है। सिमिलरली अगर किसी पेशेंट के यूरिन के अंदर क्रेटिनिन की कंसंट्रेशन कम आती है, इसका मतलब होता है कि क्रेटिनिन जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा। तो ये डायग्नोसिस होती है डिफरेंट न्यूरोपैथिक नेफ्रोपैथिक कंडीशंस की। नेफ्रोपैथिक कंडीशंस कहते हैं एनी प्रॉब्लम इन किडनी और एनी डिजीज ऑफ किडनी। तो ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन क्रेटिनिन की ज़्यादा होगी और या फिर यूरिन के अंदर क्रेटिनिन कंसंट्रेशन कम होगी, तो इससे हम डायग्नोस करते हैं कि किडनी जो है हमारी वो नेफ्रोपैथिक डिसऑर्डर की तरफ जा रही। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लाइसिन एंड सिस्टीन। दे हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ बाइल सॉल्ट्स। बाइल सॉल्ट्स जो हमारे पास बाइल एसिड बनाते हैं, जो बाइल एसिड हमारे पास डाइजेशन हेल्प करता है। तो इनके जो प्रिकर्सर है वो भी हमारे पास अमीनो एसिड है, जो कि हमारे पास ग्लाइसिन है और सिस्टीन है। नेक्स्ट वी हैव ग्लूटामेट, सिस्टीन एंड ग्लाइसिन synthesize glutathione. Glutathione is another important protein of our body and that is involved in different metabolic reactions, and this also synthesized by glutamate, cysteine and glycine. Next is another important amino acid is histidine. Histidine changes to histamine on decarboxylation. हिस्टिडीन एक अमीनो एसिड है हमारे पास जो कन्वर्ट हो जाता है हिस्टामीन के अंदर, और ये प्रोसेस हमारे पास कहलाता है डी कार्बोक्सिलेशन। हिस्टामीन जो है ये भी हमारे पास एज ए न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट करता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। एक तरह से हार्मोन भी है और एक तरह से ऑटोकॉइड्स भी है। जब हम आगे फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो हम इसमें ऑटोकॉइड्स के अंदर हम हिस्टामीन पढ़ेंगे। जितने भी हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं वो सारे के सारे हिस्टामीन से इन्वॉल्व होते हैं। ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट इज सेरोटोनिन इज फॉर्म बाय ट्रिप्टोफैन। तो ट्रिप्टोफैन जो है हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है सेरोटोनिन के अंदर। सेरोटोनिन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ये भी हमारे पास एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ग्लाइसिन इज यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ हीम। हीम इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ red blood cells and glycine is an important precursor for its synthesis. Pyrimidines and purines use several amino acids for their synthesis, such as aspartate and glutamine. For pyrimidines and glycine, aspartic acid, glutamine, and serine for purine bases. दो तरह की हमारे पास न्यूक्लिक एसिड बेसिस होती हैं, और इन बेसिस के ज़रिए हमारे पास जो है वो हमारी बॉडी का डीएनए सिंथेसाइज होता है। अब ये बेसिस कौन कौन सी होती है हमारे पास? एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन, ग्वानिन, यूरेसिल, ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। तो इनकी जो सिंथेसिस होती है इन बेसिस की, उसमें भी हमारे पास डिफरेंट अमाइनो एसिड इन्वॉल्व हैं। जो अब इसमें जो पायरेमिडीन बेसिस होती है, पायरेमिडीन बेस की सिंथेसिस के अंदर हमारे पास दो अमाइनो एसिड इन्वॉल्व हैं, दैट इज एस्पार्टेट एंड ग्लूटामीन। Similarly, for the synthesis of purine bases, we have involved four amino acids that are glycine, aspartic acid,
glutamine, and serine. Next, we have a classification of nutritional types of amino acids. That is when we classify the amino acid on the basis of nutrition. So we have three different types basically. First is essential amino acids, then second is non-essential amino acid, and the third is semi-essential amino acid. What are essential amino acids? Essential amino acids are the one which are not synthesized by the body and must be taken in diet. They include valine, leucine, isoleucine, phenylalanine, threonine, tryptophan, methionine and lysine. तो ये वो अमाइनो एसिड्स हैं जो कि हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते और हमें जो है एक्सटर्नली डाइट में इसको इनटेक करना पड़ता है. अनदर इज नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड. ये बाकी वो सारे अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी में जो है सिंथेसाइज होते हैं. दे कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी एंड मे नॉट बी द रिक्विसाइड कंपोनेंट ऑफ द डाइट. The third class is semi-essential amino acid. ये कौन सी क्लास होती है? These are the growth promoting factors since they are not synthesized in sufficient quantity during growth. They include arginine and histidine. They become essential in growing children's pregnancy and lactating women. इसमें वो अमाइनो एसिड्स आते हैं जो कि बेसिकली ग्रोथ प्रोमोटिंग फैक्टर्स होते हैं. ग्रोथ प्रोमोटिंग फैक्टर्स का मतलब है जहाँ पर भी हमारे पास सेल डिवीजन का प्रोसेस ज़्यादा हो रहा होगा बॉडी के अंदर मतलब सेल्स जो है वो माइटोसिस के थ्रू जो है वो डिवाइड हो रहे होंगे कंटिन्यूसली. तो उस टाइम पर जो है हमारे पास इन अमाइनो एसिड्स की नीड बॉडी में बढ़ जाती है. नॉर्मली जो है ये अमाइनो एसिड्स हमारे पास एज अ नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं. लेकिन जब हमारी बॉडी ग्रोइंग फेज के अंदर आती है तब ये हमारे पास जो है बॉडी इतनी ज़्यादा सिंथेसाइज नहीं कर पाती जितनी इसकी नीड होती है. तो ऐसे टाइम पे फिर ये एज अ असेंशियल अमाइनो एसिड बन जाते हैं और फिर हमें जो है इनको डाइट में भी लेके जो है इसकी जो कंसनट्रेशन है उसको कवर करना पड़ता है वो डाइट में लेके. तो ये कौन सी फेसेस होती हैं? इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है चिल्ड्रंस की. चिल्ड्रन का जो है ग्रोइंग फेज होता है जब उनकी बॉडी ग्रो हो रही होती है, जब उनकी बोन्स ग्रो हो रही होती हैं, उनके मसल्स ग्रो हो रहे होते हैं. तो उस वक्त ये अमाइनो एसिड्स की जो नीड होती है वो ज़्यादा होती है. एंड फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी के अंदर भी हमारे पास जो है फीटस की डेवलपमेंट हो रही होती है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही होती है. उसके लिए भी हमारे पास इन जो है अमाइनो एसिड की नीड ज़्यादा होती है. लैक्टेटिंग वुमेन के अंदर जो है जो अपनी बेबी को फीड करते हैं उनके अंदर भी जो है प्रोलैक्टिन एक हार्मोन होता है. हार्मोन के थ्रू हमारे पास जो है मिल्क की प्रोडक्शन जो है बढ़ जाती है फीमेल्स के अंदर और ऐसी वुमेन्स के अंदर भी जो है इन अमाइनो एसिड का नीड जो है वो बढ़ जाती है. नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड्स. प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड्स में हम जो है पढ़ेंगे सबसे पहले आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म हमने लास्ट टाइम जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स में भी कवर किया था. तो ये भी इसमें जो है सिमिलर टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म है. So we have two types of isomerism are shown by amino acids basically due to the presence of asymmetric carbon atom. Glycine has no asymmetric carbon atom in its structure, hence optically inactive. तो आइसोमेरिज्म हमारे पास में कौन कौन सी होती हैं? एक होती है स्टेशियो आइसोमेरिज्म और दूसरी है हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. इसमें एक चीज़ हमें नोट करनी है आइसोमेरिज्म स्टार्ट करने से पहले, वो ये कि जो ग्लाइसिन था हमारे पास, ग्लाइसिन जो हमने सबसे पहला अमाइनो एसिड पढ़ा था जिसका सबसे बेसिक स्ट्रक्चर था, अगर मैं वो आप लोगों को याद कराऊँ तो उसमें कार्बन के एक साइड पे हमारे पास अमाइनो ग्रुप था NH2, सेकेंड साइड दूसरी साइड पे हमारे पास COOH था और बाकी कार्बन के जो दो वैलेंसीज है वो दोनों जगह पे हमारे पास हाइड्रोजन एटम था और कार्बन की दूसरी चेन हमारे पास नहीं थी. तो ये सबसे बेसिक स्ट्रक्चर था ग्लाइसिन का. क्योंकि इस कार्बन के ऊपर जो है हमारे पास चार बॉन्ड हैं बेसिकली, सबको पता है चार वैलेंसी होती है. तो चार में से जो है दो हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन है और बाकी दो में जो है एक पे हमारे पास अमाइनो ग्रुप है और एक पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है. तो ये जो कार्बन हुआ हमारे पास, ये कार्बन बेसिकली हमारे पास एसिमेट्रिक कार्बन नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एसिमेट्रिक कार्बन के लिए लाजमी है कि जो चारों साइड में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप एग्जिस्ट करे.
मतलब एक हाइड्रोजन की जगह अगर हमारे पास दूसरे कार्बन होता या कोई और चेन होती है हमारे पास या कोई रिंग स्ट्रक्चर होता, तो हम कहते हैं कि ये जो है हमारे पास एसिमेट्रिक कार्बन है। तो अब ग्लाइसिन के अंदर क्योंकि हमारे पास एसिमेट्रिक कार्बन नहीं होता, तो इसलिए उसकी आइसोमेरिक फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती, और वो ऑप्टिकली जो है वो इनएक्टिव होता है। मतलब उसके अंदर अगर हम लाइट पास करें तो वो बगैर डाइवर्ट हुए जो है वो लाइट उसमें पास हो जाएगी। So in the next class we will continue with स्टेरियो आइसोमेरिज्म। और से क्लास का टाइम ये पूरा हो चुका है। इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।